Today we are having the next class of Income Tax Act. Last class we did income tax rate of individual. Now we are to move with tax rate of other SSE like HUF, like company, like firm. But before moving to tax rate of others, what we prefer, we first have a small recap of what we did in the last class. Ready? Okay, ready. Just a moment. Fine. So in last class we have done tax rate of individual. I suggested you the individual for the purpose of income tax being classified under the old regime in three subparts. One is very senior citizen, another is senior citizen, and last one is other. In case of very senior citizen, for first 5 lakh, there will be no tax. In case of senior citizen, for first 3 lakh, there will be no tax. For other SSE, for first 2.5 lakh, there will be no tax. 5% rate of tax will be if your income is in between 3 to 5 lakh, and here in between 2.5 lakh to 5 lakh. For the purpose of very senior citizen, the 5% slab is not applicable. If your income is beyond 5 lakh, above 5 lakh, then the rate of tax will be 20%, irrespective what you are, individual, senior citizen, very senior citizen, or whatever. For everybody, 20% rate of tax if your income is in between 5 to 10 lakh. And if your income is more than 10 lakh, then the rate of tax will be 30%. This what we are talking about, rate of tax for individual under old regime. This old regime is still applicable, but not very vital, लेकिन हाँ applicable है. Further we did surcharge. Surcharge is super tax. If your income is up to 50 lakh, there will be no surcharge. If your income is in between 50 lakh, मतलब more than 50 lakh until 100 lakh, rate of surcharge will be 10%. If your income is more than 1 CR till 2 CR, rate of surcharge will be 15%. If your income is more than 2 CR up to 5 CR, your rate of surcharge will be 25%. If your income is more than 5 CR, then rate of surcharge will be 37%. Health education says for everybody 4%. I hope you remember all these. Still try this sum. Illustration. Find tax liability of Mr. Dhoni having income. धोनी सर की इनकम बहुत ज़्यादा है. मैं एक बार छोटी सी इनकम लेता हूँ उनके लिए 6 CR. Having income 6 CR. आपको बताना है his tax liability. Obviously he is a normal citizen, not senior citizen. Go ahead. Go ahead. Sorry? 17,500. It is not 6 lakh. It is 6 CR. धोनी जी की इनकम है भाई.
सायन वीडियो ऑन करना, ऑन ही रखना, हाँ, थ्रू आउट द क्लास। Sorry, how much? 2,53,79,050. Let me check. Let me check. Then Dhoni sir is paying out of income of 6 crore, he is paying 2.53 crore as tax. It is more than 42%. तो भाई धोनी जितना कमाता है ऑलमोस्ट आधा देश को समर्पित कर देता है। तो धोनी की इनकम देख के जलो मत, यू मस्ट बी हैप्पी। वो लोग जितना कमाते हैं ना, धोनी अच्छा है तुम्हारे, ये सब ये जितना कमाते हैं आधा तो देश को वापस दे देते हैं और बात बात की इनकम लेके चल रहे हैं। यू नो एवरेज रेट ऑफ टैक्स फॉर धोनी इज मोर देन 40%। Average rate of tax for Dhoni etc. under old regime is more than 40%. Okay, चलो नाइस। That means आप लोग का पहला क्लास बहुत अच्छे से हो गया, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट आप लोग ने बहुत जल्दी राइट आंसर दे दिया। नाइस, लेट्स मूव अहेड। वी आर मूविंग टू टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल, बट आज की क्लास बहुत टफ होने वाली है। Why? Because today we are going to do new regime. Tax rate of individual in new regime. Now what is this old regime? What is this new regime? ये क्या लफड़ा है थोड़ा बताइए। देखो देश में थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके आता हूँ, थोड़ी सी कहानी से, थोड़ी सी कहानी के थ्रू बताएंगे ना तो ये चीज़ थोड़ा सा इजी लगेगा। देश में ये जो स्लैब है ना 2.5 लाख पे नील एंड नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20% एंड बैलेंस पे 30%। ये जो कहानी है ना ये बहुत पुरानी है, ये करीबन 10 साल से ज़्यादा हो रहा है। ये रेट ऑफ टैक्स वही की वही है। जबकि कांग्रेस के एज में क्या हो रहा था, कांग्रेस जब हमारी सरकार थी तो उस समय रेट 1.25 से 1.5 हर साल कुछ न कुछ एग्जम्पशन बढ़ रहा था, हर साल कुछ न कुछ एग्जम्पशन आ जाता था। ये 1 लाख की इनकम है, चलो इस साल 1 लाख 1.25 लाख तक टैक्स मत देना, 1.25 लाख तक टैक्स नहीं दे रहे हो अगले साल, चलो कोई बात नहीं 1.5 लाख तक टैक्स मत देना, 1.5 लाख तक टैक्स नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं अगले साल 1,80,000 तक टैक्स नहीं देना। तो सबको बजट का इंतजार रहता था इन द एरा ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, यार इस साल भी कुछ एग्जम्पशन आएगा, इस साल भी कुछ एग्जम्पशन आएगा। फिर मोदी सरकार आई, इनसे भी वही उम्मीद, क्योंकि वही ट्रेंड है, ये हर साल इनकम कुछ ना कुछ एग्जम्पशन बढ़ाई जाती है। लेकिन मोदी सरकार 10 साल में एक बार भी 2.5 लाख के एग्जम्पशन को बढ़ाया नहीं, ये बोला ये यही रहेगा। तो फिर प्रश्न आता है कि यार ये ऐसे कैसे रहेगा, बात बात की गवर्नमेंट तो रिलैक्स कर रही थी, आप तो रिलैक्स नहीं कर रहे हो। तो आज से कोई 4-5 साल पहले और पहले 6 साल पहले मोदी सरकार ने, गवर्नमेंट ने हम लोग सबको बेनिफिट का ढेर दे दिया, लो कितना बेनिफिट लेना है लो, हम लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन उन्होंने बोला
कि भैया देखो हम इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई करने का सोच रहे हैं। और सिंप्लीफाई क्या है कि आज इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया हमारी बदनाम है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टैक्स लेते हैं, लेकिन इंडियन इनकम टैक्स को समझे बिना इंडियन इनकम टैक्स की बुराई करना तो गलत बात है ना। हम माना 2.5 लाख के बाद टैक्स लेते हैं, ये आपने पहली क्लास में सीख लिया, ये प्राइमरी आइडिया है। लेकिन माना हम 2.5 लाख के बाद टैक्स लेते हैं, बट वी आर प्रोवाइडिंग सो मेनी रिलैक्सेशन इन वेरियस चैप्टर वाइल कंप्यूटिंग इनकम। हम बहुत सारे डिडक्शंस देते हैं। तुम ऐसे समझो कि मैं करीबन 10 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देता, मैं 10 लाख के बाद टैक्स देना शुरू करता हूं। आपने तो सीखा है कि 2.5 लाख के बाद कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख के बाद टैक्स लगना शुरू होगा, लेकिन मैं 10 लाख के बाद टैक्स देना शुरू करता हूं, क्योंकि इनकम टैक्स के अलग अलग प्रोविजंस में कुछ कुछ डिडक्शंस है वाइल कंप्यूटिंग इनकम। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप सैलरी कमाते हो तो 50,000 का डिडक्शंस मिल जाएगा, ऐसे ही स्टैंडर्ड डिडक्शंस रहते हैं इसको। आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसके लिए आपको 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शंस मिल जाएगा। एटीसी में कोई एक सेक्शन है जिसमें आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च देते हो, तो आपको 1.5 लाख का डिडक्शंस मिल जाएगा। एटीडी एक सेक्शन है जहाँ पे आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो अपने और अपनी फैमिली के लिए, तो आपको 50,000 मोटा मोटी डिडक्शंस मिल जाता है। एटीटीटीए में आपकी इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट से 10,000 का डिडक्शंस मिल जाता है। मेरे को सिंस आई एम एन ऑथर, तो एटीक्यूक्यूबी में मुझे 3 लाख का डिडक्शंस मिल जाता है। तो यार मेरा डिडक्शंस देखो तुम 3 लाख 60,000, 5 लाख 10,000, 7 लाख 10,000 और 2.5 लाख की छूट तो है ही। अभी और डिडक्शंस भी है। इसके अलावा आप कोई एसेट खरीदते हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देते हम। आप कोई मशीनरी खरीदते हो तो हम आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो अलाउ करते ही है, और एक एडिशनल डेप्रिसिएशन और देते हैं। पीजीबीपी निकालने के लिए जितना भी आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हो उसका डिडक्शंस देते हैं। तो ये आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे ना, वैसे वैसे आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या अलग अलग चैप्टर में अलग अलग डिडक्शंस अवेलेबल है। तो माना हमारी सरकार 2.5 लाख के बाद 5% टैक्स लेती है, लेकिन ये इतने सारे रिलैक्सेशन भी देती है। वर्ल्ड वाइड ये रिलैक्सेशन तो कोई जानता नहीं है और खाली चिल्ला चिल्ली मचाता है। मालूम इंडिया में 2.5 लाख के बाद टैक्स है, दूसरी वर्ल्ड की कंट्री में 5 लाख के बाद टैक्स है, इंडिया में 2.5 लाख के बाद टैक्स है। अरे इंडिया के लोगों से पूछो, मेरे से पूछो, मैं बोलता हूँ मैं 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं देता, 10 लाख के बाद टैक्स देता हूँ। लेकिन ये तो सिर्फ इंडियन पीपल को पता है ना कि 2.5 लाख तो भूलने की बात है, छूट फूट मिला मिलू के 5-6 लाख तक तो टैक्स लगता ही नहीं है। तो मोदी सरकार ने बोला क्यों अपने ऐसे बेवकूफ़ी वाला काम करे कि डिडक्शंस देते भी है और मालूम भी नहीं पड़ता। तो फिर मोदी सरकार ने 2019 के करीब निर्मला जी ने एक न्यू रिजीम लाया और न्यू रिजीम ला के बोला कि भैया देखो आपको टैक्स में ज़्यादा डिडक्शन चाहिए तो आप ये सारी बेनिफिट लेना छोड़ दीजिए, ये सारी बेनिफिट लेना छोड़ दीजिए, मैं आपको ढेरों ढेरों एग्जम्पशन दूंगी। और मोदी सरकार ने एक न्यू रिजीम लाया जो कि आपकी चॉइस पे छोड़ दिया, आप ओल्ड रिजीम लेना चाहते हो कि न्यू रिजीम लेना चाहते हो। इन्होंने बोला कि आपको पहले 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, नेक्स्ट 4 लाख पे आपको टैक्स देना है सिर्फ 5%। यानी सोचो आपकी इनकम 8 लाख है और आपको सिर्फ 20,000 टैक्स देना है। नेक्स्ट 4 लाख पे आपका टैक्स होगा सिर्फ 10%। अब सोचो आपकी इनकम 12 लाख है और आपको टैक्स देना है कितना, सिर्फ 60,000 रुपया।
4 लाख पे नील, 4 लाख पे 5% और 4 लाख पे 10%। तो आपकी इनकम है 12 लाख और आपको टैक्स देना है सिर्फ 60,000 रुपीज। नेक्स्ट 4 लाख पे भी आपका टैक्स होगा सिर्फ 15%। नेक्स्ट 4 लाख पे आपका टैक्स होगा 20%। नेक्स्ट 4 लाख पे आपका टैक्स होगा 25%। और नेक्स्ट नहीं बैलेंस इनकम पे आपका टैक्स होगा 30%। तो ओल्ड रिजीम में जहां 10 लाख के बाद 30% लगना शुरू हो जाता, न्यू रिजीम में ध्यान दो, न्यू रिजीम में 30% कब लगता है? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24। आफ्टर 24 lakh you will face the burden of 30% tax। और ओल्ड रिजिम में क्या हो रहा था? आफ्टर 10 lakh you will face the burden of 30% tax। सो कौन बोलता है इंडिया में 30% टैक्स है? इंडिया का आम आदमी तो 30% टैक्स नहीं देता। इंडिया के बहुत पैसे वाले लोग 30% टैक्स देते, जो सालाना 24 लाख, महीने का 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं, वो लोग 30% टैक्स देते हैं। बात की इंडियन इतना टैक्स नहीं देता। तो दिस साउंड्स वेरी कंफर्टेबल। हु सेज इंडिया में टैक्स रेट बहुत ज्यादा है? और पैसे वाले से तो पूरी दुनिया ही ज्यादा टैक्स लेती है। अब दुबई जैसी कंट्री बननी है तो बात अलग है। दुबई जैसी कंट्री में कोई टैक्स ही नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक इनकम टैक्स देयर, क्योंकि भैया उनका भूगोल अलग है, हमारी ज्योग्राफी अलग है। उनके पास पेट्रोल है भाई, और वो कंट्रीज बनी ही इसलिए है, उनका बेस ऑफ क्रिएशन ही यही है कि अपने आप को टैक्स हेवन डिक्लेयर कर देना। दुबई में अपना बिजनेस कुछ नहीं है। दुबई इतना शानदार रूप से डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने आप को टैक्स हेवन बनाते शुरू किया कि भैया वी आर द लैंड वेयर देयर इज नो टैक्स, नो इनकम टैक्स, नो इनडायरेक्ट टैक्स, आ जाओ। तो ये सुनते ही वर्ल्ड के सारे रिच पर्सन्स ने दुबई में अपनी अपनी बिजनेस शुरू की। तो दुबई में जब सब ने अपनी अपनी बिजनेस शुरू की, तो दुबई में सबकी अपनी अपनी ऑफिस ली गई, तो अचानक दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट बूम पे आ गई, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑफिसेस की डिमांड हो गई। और सारे रिच पर्सन्स की ऑफिस या अपना एक रेसिडेंशियल हाउस दुबई में रहा, और वहां से रेसिडेंशियल हाउस से म्युनिसिपल टैक्स और ऑफिस से म्युनिसिपल टैक्स आके दुबई के पास शानदार पैसा आ गया। छोटी सी कंट्री और बहुत जबरदस्त पैसा आ गया, वहां से दुबई रिच हो गया। तो वो क्रिएशन, वो नो टैक्स जोन अपने आप को बना के जीना एक अलग बात है। उसमें आपकी इकोनॉमी टोटली डिपेंड करती है आउटसाइडर्स पे। परंतु इंडिया जिसको 140 करोड़ लोगों को फीड करना है, वो आउटसाइड इकोनॉमी पे बेस करके तो अपनी कंट्री नहीं चला सकता ना। हाँ, कब कौन सा अमेरिका आते टैरिफ बम छोड़ते, बोलते भैया हम तो तेरे साथ ये करेंगे, तो हम लोग क्या सड़क पे आ जाएंगे क्या? तो इसलिए इंडिया के पास अपना फंड होना, अपना रेवेन्यू होना और अपने दम पे जीना बहुत जरूरी है। तो फिर इंडिया अपना एक टैक्स लेता है और सबसे लेता है, और हम लोग सब बहुत ही प्यार से देते हैं भैया टैक्स, क्योंकि अब तो न्यू रिजीम में कोई खास टैक्स देना ही नहीं है मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास से लिया जाता है। धोनी जैसे लोग अभी भी 40% टैक्स दे रहे हैं। तो इस तरीके से न्यू रिजीम का जन्म हुआ, और न्यू रिजीम में बोला गया कि आप यदि टैक्स के जो वेरियस अलग अलग चैप्टर में अलग अलग डिडक्शंस अवेलेबल है, इफ यू सैक्रिफाइस, इफ यू वेव दोज डिडक्शंस, then this new regime shall be applicable, which is quite less than old regime। तो what is exactly new regime? कॉपी में जॉट डाउन करना, न्यू regime for individual। To be noted, in case of new regime, there is no division like senior citizen, very senior citizen। It is for all individual, same rate। Make it easier। क्या सीनियर सिटीजन, क्या वेरी सीनियर सिटीजन, और क्या आप ज्यादा उनको रिलैक्सेशन दे देते, 2500 का रिलैक्सेशन दे रहे थे सीनियर सिटीजन को। किसको चाहिए 2500 का रिलैक्सेशन? चलो यहां से। तो न्यू रिजीम फॉर इंडिविजुअल इज फर्स्ट 4 लाख
nil. नाउ आपको 4 लाख 6 बार लिखना है, बस ध्यान रखना 4 लाख कितनी बार लिखना है, 6 बार। एक ओवर में कितनी बॉल, 6 बॉल। तो आपको सहवाग की तरह हर बॉल पे 4 चौका मारना है। 1 2 3 4 5 6 मार दिए। अब 5% एपी के साथ अपना टैक्स रेट बनाइए। बना दिए। इजी टू रिमेंबर, वेरी इजी टू रिमेंबर। एंड नाउ बैलेंस इनकम पे योर टैक्स रेट विल बी 30%। ये तो सर ओल्ड रिजीम से भी ज्यादा इजी है। हाँ, क्लियर। नाउ the rate of surcharge will be almost same. Rate of surcharge shall be almost same. Have you noted this? Say yes. Yes. Okay, fine. Rate of surcharge depends upon your income. If your income is up to 50 lakh, no surcharge. Income is more than 50 lakh, up to 1 crore, it is 10%. If your income is more than 1 crore, up to 2 crore, it is 15%. If your income is more than 2 crore, it is 25%. To be noted here, 37% surcharge is not applicable. Not applicable. Is that clear? 37% surcharge is not applicable. चलो आगे बढ़े। And health education cess shall be same. %4. I hope the new regime is very clear to you. But you need to memorize what sections an SSC need to sacrifice. That you need to memorize. I can't teach you that. I can't explain you that. Because those sacrifices are coming from various chapters. We will discuss those sections only when we discuss those chapters. Right now, either you jump from it, or you need to memorize. Okay, let's start. First, do one illustration. Mr. Dhoni. Mr. Dhoni has income of 6 CR in new regime. Find his tax liability. And I know personally Dhoni has opted new regime only. Find his tax liability. So what shall be the answer? First 4 lakh nil, next 4 lakh 5%, that is 20,000, next 4 lakh 10%, that is 40,000, next 4 lakh 60,000, next 4 lakh 80,000, next 4 lakh 1 lakh. So on first 24 lakh, your tax liability shall be merely 2,80,000. Approx 11-12%. यानी आप 24 लाख पे 280 लाख, 24 लाख पे 2,80,000 का टैक्स दे रहे हो।
your average rate of tax is just less than 12%. And balance income, how much is Dhoni's total income? 600 lakh. So balance income is 576 lakh. On 576 lakh 30%. ये कितना आया? ये आया 172 lakh 80,000. So total tax liability is 175 lakh 60,000. Is that clear? Now, what shall be the surcharge? You know, surcharge rate will be maximum 25%. In old regime, it was 37%. But in the new regime, it shall be just 25%. So 175.6 का 25%, it comes to 43 lakh 90,000. Your tax liability is 219.50. 2 crore 19 lakh 50,000. अभी एक टैक्स और बाकी है, 8,78,000 का एजुकेशन सेस. सो धोनी सर का टैक्स आया, यदि उनकी इनकम 6 करोड़ है तो 228,28,000. भाई ये बताओ तो ओल्ड रिजिम में कितना आ रहा था? कितना डिफरेंस आ गया? डिफरेंस आ गया 25,51,250. इतना ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम में डिफरेंस है. 25 लाख की टैक्स सेविंग हो रही है. तो भैया क्यों कोई ओल्ड रिजीम में जाना चाहेगा? तो एनी हाउ न्यू रिजीम इज far better, but you will have to sacrifice few deductions what otherwise you can have. ओल्ड रिजीम लोगे तो वो मिल जाएगा, लेकिन न्यू रिजीम में वो नहीं मिलेगा. न्यू रिजीम में वो सब छोड़ना पड़ेगा. आज सी डेट में आफ्टर दिस असेसमेंट ईयर 26-27 अमेंडमेंट, द न्यू रिजीम इज वेरी मच अट्रैक्टिव देन ओल्ड रिजीम. इसलिए पब्लिक न्यू रिजीम में ही जाना पसंद कर रहा है. जब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया तो वी हैड एन इंटिमेशन, वी हैड एन नॉट इंटिमेशन, वी हैड एन इंट्यूशन कि जहां तक अब ओल्ड रिजीम हटा देगा, लेकिन अभी भी इन स्पाइट ऑफ न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 which is not in your syllabus, still even in the new act old regime is continued. तो भैया यही आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 एक्ट में भी यही रेट है, और आप जो असेसमेंट ईयर 26-27 पढ़ रहे हो उसमें भी यही रेट है. ठीक है, तो कम से कम आपका ये रेट ऑफ टैक्स आने वाले 1 साल तक तो सेम ही है. ओके, हैव यू कॉपीड ऑल दीज? ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are to just note down the sacrifices. क्या छोड़ना पड़ेगा, और ये आपको बस नोट करना है. ये सेक्शंस आपको जस्ट नोट करने हैं, क्योंकि ये सेक्शंस आपको समझ में तो आने नहीं है, बिकॉज ये सेक्शंस हम लोग अलग अलग चैप्टर में सीखेंगे. सैलरी करेंगे तो उसके चैप्टर उसके सेक्शन सीखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में उसके सेक्शन सीखेंगे, पीजीबीपी में उनके सेक्शन सीखेंगे. तो अभी तो जस्ट नोट ही होगा. Conditions for claiming new regime. All are ready? An individual need to या cannot claim
cannot claim benefit of following. ये सब की बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी. कितने पॉइंट होंगे? 12-14 पॉइंट. ये सब की आपको बेनिफिट नहीं मिलेगी. नंबर ए. ऑलरेडी all are ready. Benefit of section 10AA. ये टॉपिक आप पढ़ोगे सेज में, स्पेशल इकोनॉमी जोन में. चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप जब उस चैप्टर में जाए तो आपको ध्यान रहे कि अरे हाँ ये सीखा था हमने वहां पे. बेनिफिट ऑफ सेक्शन 10(7) या 10(5) लीव ट्रेवल कंसेशन. या पढ़ोगे सैलरी चैप्टर में. बेनिफिट ऑफ सेक्शन 10(7) अलाउंस टू MP MLA. ये आपके सिलेबस में नहीं है. बेनिफिट ऑफ सेक्शन 10(13)A. इसका नाम है हाउस रेंट अलाउंस. ये आप सीखोगे इस चैप्टर सैलरी में. ठीक है. बेनिफिट ऑफ सेक्शन 10(14) एक्सेप्ट CDTT. ये भी आप सीखोगे कहाँ? सैलरी में. यहाँ पे CDTT क्या है? ये C है यहाँ पे कन्वेंस अलावेंस. यानी किसी अलावेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ ये 4 अलावेंस का बेनिफिट मिलेगा. आई रिपीट, किसी अलावेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, खाली ये 4 अलावेंस का बेनिफिट मिलेगा. कन्वेंस अलावेंस, डेली अलावेंस, ट्रेवल अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस. अब इसके अंदर क्या बेनिफिट है ये आप सैलरी चैप्टर में जाके पढ़ोगे. तो नो अलावेंस बेनिफिट यू कैन क्लेम एक्सेप्ट CDTT, डेली अलावेंस. यहां पे जो गलत बात हो रही है इसलिए इन चेंज कर रहा हूं. तुम भी हाइलाइटर मार सकते हो. स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम सैलरी shall be ₹75,000. ओल्ड रिजीम में ये डिडक्शंस 50,000 है. ये ओल्ड रिजीम में 50,000 है. न्यू रिजीम में ये डिडक्शंस ज्यादा है. देखो एक तरफ तो आप बोल रहे हो आपको डिडक्शंस कम मिलेंगे, ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगे. इधर आप एक्स्ट्रा डिडक्शंस दे दो, इसलिए बात थोड़ी अलग हो गई. और इसलिए हम लोग इसको कलर इंक चेंज करके लिख रहे थे. ये बेनिफिट है, बात बाकी नुकसान है. वापस नुकसान की बात शुरू. Loss from self-occupied house property, loss from house property under section 23(2), self-occupied, unoccupied. For interest on loan up to ₹2 lakh shall not be available. Shall not be available. Loss from house property under section 23(2), self-occupied or unoccupied property
उसका इंटरेस्ट ऑन लोन का 2 लाख का डिडक्शंस मिलता है ओल्ड रिजीम में, वो बेनिफिट न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। ये आप कौन से चैप्टर में पढ़ोगे? ये आप चैप्टर में पढ़ोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 5, एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। अब ये एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये आप पीजीबीपी चैप्टर में पढ़ोगे। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 33AB। अभी 33AB क्या होता है, 33ABA क्या होता है, 35 क्या होता है, 35AD क्या होता है, 35CCC क्या होता है, ये सब आप पढ़ोगे इन द चैप्टर पीजीबीपी। इन सब का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। सर ये तो बहुत बोरिंग हो रहा है, तो समझ में आ नहीं रहा, खाली लिख रहे हैं। हाँ, तो मैंने आपको शुरू से बोला ना, आज की क्लास थोड़ी टफ है, इसीलिए तो लोग इस टॉपिक से स्टार्ट नहीं करना चाहते। लेकिन मैं तो तुम्हें वैसे ही पढ़ाऊंगा ना जैसा मेरा सब्जेक्ट है, नो ड्रामेबाजी, जैसा मेरा चैप्टर है वैसा ही आप पढ़ो भैया। तो सर अभी ये याद तो हो नहीं रहा है, नहीं याद भी नहीं करना, आपको अप्लाई भी नहीं करना, ये जस्ट लिख के रख लेना है, ताकि आपको कभी किसी से डिबेट हो जाए तो बोला हाँ कुछ था तो सही, परंतु अभी तक किया हुआ नहीं है। ऑल विल बी डन लेटर। जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। नेक्स्ट, कैपिटल गेन में ऐसा कुछ नहीं है आईफॉस में। यहां पे भी इन चेंज कर रहा हूं क्योंकि बेनिफिट ज्यादा है। इन केस ऑफ फैमिली पेंशन, standard deduction shall be 25,000। इन ओल्ड रिजीम ये कितना है, ये ओल्ड रिजीम में है 25,000, सॉरी 15,000। तो ओल्ड रिजीम में जो बेनिफिट 15,000 थी उसको बढ़ा दिया गया। ये आप कहां सीखोगे, ये आप आईफॉस चैप्टर में सीखोगे। ओ, नो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80CCD2 and 80CCH2 and 80JJA। ये सबका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सॉरी ये 3 सेक्शन का बेनिफिट आपको मिलेगा और कोई सेक्शन आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हमारे इनकम टैक्स से बहुत पॉपुलर चैप्टर है डिडक्शंस। इसमें करीबन हम लोग 32 बेनिफिट पढ़ते हैं, 32 बेनिफिट्स पढ़ते हैं। तो 32 बेनिफिट्स में से आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये 3 मिलेगा, 29 आपको छोड़ना पड़ेगा। इन केस ऑफ क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर, deduction under section 1032, deduction under section 1032 shall not be available।
ये छोटा सा डिडक्शंस मिलता है जो आप क्लब इन चैप्टर में सीखोगे। 1500 रुपए का डिडक्शंस है, वो आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। कहाँ सीखोगे? क्लब इन चैप्टर में। Losses under the head income from house property. Cannot be set off with other heads of income. Under section 72. ये आप सेट ऑफ चैप्टर में सीखोगे। तो मैंने आपको हर जगह चैप्टर का नाम बता दिया कि आप ये जो सेक्शंस मैंने बताए हैं, इन सब का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और ये सारे चैप्टर अभी आप सिर्फ नोट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, बिकॉज ये पूरा सीखने में आपको पूरा इनकम टैक्स लॉ सीखना पड़ेगा। तो दिस कैन ओनली बी नोटेड राइट नाउ। और फिर जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको इन सेक्शंस का मतलब फिर से याद कराते जाऊंगा कि ओल्ड रिजीम में क्या था, न्यू रिजीम में क्या था। अभी तो आप बस न्यू रिजीम की रेट याद रख सकते हो। 4 लाख पे नील, 4 लाख पे 5, 4 लाख पे 10, 4 लाख पे 15, 4 लाख पे 20 एंड 4 लाख पे 25, बैलेंस पे 30। अभी आप बस इतना याद कर सकते हो। आई होप यू हैव डन दिस। नोटिंग हो गया है और आपको सरचार्ज रेट और रेट ऑफ टैक्स न्यू रिजीम का इंडिविजुअल के केस में लर्न हो गया है। बात ही तो कुछ याद नहीं हुआ, बस इतना पता है दादा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तब जाके न्यू रिजीम मिलेगा। अच्छा, एक बात तुम्हें और बता दूं, फायदा किसमें है? फायदा न्यू रिजीम में ही है। 99% चांस है फायदा आपको न्यू रिजीम में, लेकिन 1% लोगों को हो सकता है ओल्ड रिजीम में फायदा हो। तो दोज पीपल हु वर गेनिंग इन ओल्ड रिजीम वो बहुत अपसेट हो जाएंगे। और 1% लोग भी इंडिया में मिल जाए ना तो फिर भी वो 1 करोड़ लोग हो जाते हैं। और 1 करोड़ लोगों को परेशानी हो जाए तो भैया बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए देश में अभी भी ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम बोथ आर गिवन एंड इट इज द चॉइस ऑफ द एसएससी वो कौन सी रिजीम ऑप्ट करता है। इट इज द चॉइस ऑफ द एसएससी। रिटर्न भरते समय एसएससी अपना एक टिकिंग करता है, अपना एक चॉइस लेता है कि मैं कौन सी रिजीम लूंगा। जो रिजीम वो ऑप्ट करेगा उसके ऊपर उसी साल से उसी पे टैक्स लगेगा। लेकिन फिर भी यदि कोई बंदा कोई टिक करना भूल गया, कोई अप्लाई करना भूल गया कि मेरे को ओल्ड चाहिए न्यू चाहिए, तो क्या होगा? तो भैया हमारे केस में, हमारे देश में न्यू regime is the default regime. So if you have not said anything, then new regime shall be applicable. This thing is clear? Just note it down. 2-3 लाइन छोड़ दो, उसके बाद नोट करना। Default regime is new regime. So if you have not opted anything, then you shall be liable to new regime only. Literally जब आप रिटर्न भरते हो ना तो एक बॉक्स आता है जिसको आपको टिक करना पड़ता है। वहां पे आपसे पूछता है कि हैव यू ऑप्टेड ओल्ड रिजीम, तो आपको लिखना पड़ता है नो, आप आगे बढ़ जाइए। और यदि आपने वहां पे यस लिखा तो फिर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो फॉर्म फिल करेंगे तब जाके आपको न्यू रिजीम का बेनिफिट मिलेगा। बात क्लियर? यानी ओल्ड रिजीम किसी को ऑप्ट करना है तो उसको स्पेसिफिकली अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन नाम क्या है, बस एक खबर देनी पड़ेगी कि मैं ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना चाहता हूं, बस इतनी सी बात। एनीवन who wishes to opt old regime, anyone who wishes to opt
old regime can do so while filing income tax return. I hope everything clear to you. Okay. We have done default regime. Okay. तो आपको इंडिविजुअल का ओल्ड रिजीम मालूम पड़ गया, इंडिविजुअल का न्यू रिजीम मालूम पड़ गया। अरे बहुत होशियार हो गए भाई आप तो। ओके, नेक्स्ट यहां से अभी भी टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल ही चल रहा है। आज टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल ही होगा, बस यहां से थोड़ा गियर चेंज होता है। You have done the basics of income tax rate, कि क्या ओल्ड रिजीम क्या न्यू रिजीम, कब ओल्ड रिजीम कब न्यू रिजीम, ये आपको मालूम पड़ गया। इट इज एट द चॉइस ऑफ द एसएससी। अच्छा एक बात और बता दूं, यदि ये चॉइस है हमारी, तो क्या हम लोग हर साल चॉइस चेंज कर सकते हैं? जैसे इस साल मैंने ओल्ड रिजीम लिया, अगले साल मैं न्यू रिजीम ले रहा हूं, तो क्या उसके अगले साल फिर वापस मैं ओल्ड रिजीम ले सकता हूं? कैन आई डू कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम? कैन आई डू लाइक दिस? तो लॉ बोलता है यस, यू कैन डू लाइक दिस, प्रोवाइडेड यू आर नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम। बट इफ यू आर हैविंग पीजीबीपी इनकम, यू अंडरस्टैंड द फुल फॉर्म ऑफ पीजीबीपी? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। So if you are having business and professional income, then you don't have this choice of kacha papad, pakka papad. Then you will have to choose one regime. And once you opted new regime, you will permanently fall under the new regime. But if you do not have PGBP income, then you can do kacha papad, pakka papad. आज old regime, फिर new regime, फिर अगले साल फिर old regime, फिर अगले साल फिर new regime. आपकी choice. We don't have any problem. Got it? ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों बिजनेस वालों के साथ ये बदमाशी क्यों? इसके कारण मैं तुम्हें बताता हूं। इसके कारण ये देखो, बिजनेस को हम लोग इतने सारे बेनिफिट दे रहे हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च को डोनेशन। इसमें क्या होगा कि सपोज इस साल मैंने साइंटिफिक रिसर्च को डोनेशन देना है 50 करोड़ का, तो मैं क्या बोलूंगा, इस साल आप मुझे न्यू रिजीम दे दीजिए। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन मालूम कब मिलता है? जब आप एक नई मशीनरी खरीदते हो। तो सपोज इस साल हमने बहुत एक्सटेंशन किया है, इस साल हमने 1000 करोड़ की न्यू मशीनरी खरीदी है, तो हम क्या बोलेंगे, इस साल मुझे आप न्यू रेट दे दो, ओल्ड रेट दे दो। ओल्ड रिजीम दे दो, मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ओल्ड रिजीम दे दो, मुझे साइंटिफिक रिसर्च का बेनिफिट मिल जाएगा। तो लॉ बोलता है नहीं नहीं, ये तो फिर मस्ती ले लेगा। जब जब एक खर्चा होगा ओल्ड रिजीम में शिफ्ट हो जाएगा, वापस न्यू रिजीम में आ जाएगा। तो लॉ बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। सैलरी वालों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी वालों का तो हर साल एचआरए रहेगा, हर साल ही एजुकेशन अलाउंस रहेगा, हर साल ही अलाउंसेस रहेंगे। तो आपको मर्जी है तो लो, नहीं तो नहीं लो, तो बात नहीं, वो तो यूनिफॉर्म रहेगा, एवरी ईयर सेम रहेगा। लेकिन बिजनेस में तो हो सकता है इस साल मैंने बहुत मशीनरी खरीदी है, सो आई एम एलिजिबल फॉर एडी। अगले साल मैंने कोई नई मशीनरी नहीं खरीदी है, तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एडी। एडी मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन। सो बिजनेसमैन में डू सम प्लानिंग, सो लॉ इज नॉट परमिटिंग दैट। लॉ बोल रहा है इफ यू आर डूइंग बिजनेस, वंस यू ऑफ न्यू रिजीम, देन यू गो फॉर न्यू रिजीम ओनली, यू कैन नॉट गेट बैक टू ओल्ड रिजीम। But in case of other SSC, you have the choice. Every year you can change regimes. Old regime, new regime, old regime, new regime. Got it? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? देखो, जब तक एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं समझोगे, जब तक 35 नहीं समझोगे, तुम्हें बात पूरी तरीके से समझ में तो आएगी नहीं। लेकिन still I am trying to make you understand to some extent.
NSSE within bracket who is not having PGBP income. PGBP का फुल फॉर्म ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. आप यहां पे लिख दो इज नॉट हैविंग बिजनेस इनकम, चलेगा. हु इज नॉट हैविंग बिजनेस इनकम may change his decision year to year. In other words, in 1 year old regime, another year new regime, and so on. So fine. But a person who is having PGBP income is not having such choice. ये भी लिख दूं? But an individual who is having PGBP income shall not have such choice. Done. So you have done old regime, new regime. Now we are moving to another chapter. यहां से आपको वापस समझ में आना शुरू हो जाएगा. You have gone through that arena of 20 minutes जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बेवजह अपने लिखे जा रहे थे, वो एरिया चला गया. अब वो 20 मिनट चला गया. अब वापस टैक्स में मेरी गारंटी है जितना बोलूँगा सब समझ में आएगा. बस ये 20 मिनट की इनकम टैक्स का ऐसा है जो मैं बता रहा हूं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है. इसके बाद आने वाले 30-40 क्लास तक नो इशू, जो बोलूंगा सब समझ में आएगा. उसके बाद फिर कभी ऐसा हो सकता है कि 20 मिनट का ऐसा कुछ आ जाए कि जो दूसरे चैप्टर्स पे डिपेंडेंट हो. अदरवाइज पूरे इनकम टैक्स क्लास में ऐसा 1 या 2 एपिसोड आता है और पहला एपिसोड आज हो गया. ठीक है, तो भाई मेरा जैसा टैक्स है वैसा ही मैं करा रहा हूं. कोई इसमें लिपापोती नहीं है. टैक्स इजी है तो इजी है, टफ है तो टफ, जो है तुम्हारे सामने. सर अभी तक तो इजी है, बस ये थोड़ा रटना पड़ रहा है. अरे रटना नहीं पड़ेगा भाई, जैसे जैसे चैप्टर होंगे सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. ओके ठीक. लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक ऑफ द रेट ऑफ टैक्स. द नेम ऑफ द टॉपिक इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A. सब साथ में हो. एक बार पानी पी लो भाई, बहुत देर से पढ़ रहे हो. ज्यादा पानी पीना ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. मतलब इफ यू वांट टू शार्पन योर ब्रेन यू मस्ट बी ऑलवेज हाइड्रेटेड. रिबेट अंडर सेक्शन 87A. आपने मेरे से क्या सीखा? आपने मेरे से सीखा कि सर ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%. लेकिन यदि आज आप अभी जाके गूगल करोगे और पूछोगे कि इंडिया में कहां तक टैक्स नहीं देना पड़ता, तो आंसर आएगा 5 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ता. तो आपको बोलेगा यार ये तो मैं तो बोला था 2.5 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ता, ये 5 लाख क्यों बोल रहा है? देन यू अगेन आस्क कि नहीं सीनियर सिटीजन नहीं, वेरी सीनियर सिटीजन नहीं, एक बंदा जिसकी उम्र 28 साल है उसको कहां तक टैक्स नहीं देना? तो फिर आंसर आएगा 5 लाख. आप बोलेगा यार मेरे तो 2.5 लाख पढ़ाया, उल्लू बनाया मेरे को. हाँ ये तो 5 लाख बोल रहा है.
आप अलग अलग बार गूगल से पूछोगे, हर बार आंसर एक ही आएगा, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। आप अपने घर में भाई बहन जो जानते हैं टैक्स, उनसे पूछोगे, बोले हाँ 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। आपको आएगा मेरे ऊपर गुस्सा कि क्या पढ़ाया और क्या है। तो भैया देखो, जो आप गूगल में देखे, जो आपने अपने भाई बहनों से पूछा, दैट इज करेक्ट, और जो मैंने पढ़ाया वो भी करेक्ट। ये मोदी सरकार का मायाजाल है। ये लोग क्या किया, इनकी बुद्धि बहुत क्लियर है कि हम गरीब को तो टैक्स में बेनिफिट दे देंगे, अमीर को कोई बेनिफिट नहीं देंगे। इनकी बुद्धि बहुत क्लियर है कि हम गरीब को तो टैक्स में बेनिफिट देने के लिए रेडी है, परंतु अमीर को कोई बेनिफिट नहीं देंगे। अब इन्होंने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया, इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया रिबेट का, और इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम 5 लाख तक इनकम एग्जाम कर देंगे। जबकि जब भी स्लैब आती तो आती 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5%, और जब भी मोदी जी बोलते तो बोलते 5 लाख तक गरीबों को कोई टैक्स नहीं देना। अब ये द्विभाषी कैसे इंप्लीमेंट हुआ, ये देखो। एक कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया रिबेट का, पहले देखो, अभी कॉपी मत मारना, कॉपी बाद में मारना जब एकदम समझ में आ जाए। इन्होंने बोला, ये सेक्शन है हाँ 87, इन्होंने बोला कि यदि आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, यानी आप मूलतः भारतीय नागरिक हैं, आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, और आपकी टोटल इनकम यदि अप टू 5 लाख है, तो हम आपको एक रिबेट देंगे अप टू ₹12,500। हम आपको 12,500 का रिबेट देंगे। उसकी कंडीशन क्या है कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए और आपकी इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए। समझो, लेटना मत। अब सपोज एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए, रेसिडेंट इन इंडिया, और उसकी टोटल इनकम ही है 4 लाख। तो मोदी जी बोलेंगे इसका टैक्स निकालो भाई, 4 लाख इनकम है, टैक्स निकालो। तो टैक्स तो अपनी स्लैब से निकलेगी, 2.5 लाख पे नील और 1.5 लाख पे 5%। टैक्स तो अपने हिसाब से निकलेगी, जो हमने सीखा। मोदी जी बोलेंगे आने दो इसको, इसकी टैक्स इतनी है बताओ, 7,500, इसको रिबेट दे दो। क्यों रिबेट दे दूं सर? क्योंकि भैया सुनो ना, ये तो रेसिडेंट इंडिविजुअल है और इसकी इनकम 5 लाख के अंदर अंदर है, तो इसको रिबेट मिल जाना चाहिए। कितना? अप टू 12,500। हाँ, अप टू 12,500। तो तेरी इनकम कितनी बाबू? 7,500। हाँ, तो जब पूरा 7,500 छूट। अब इनकम ही जब जीरो है तो सेस 4% इस पे लगेगा, जीरो पे, तो तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी हो गई जीरो। तो बताओ मोदी सरकार ने झूठ बोला क्या कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है? नहीं, सही बोला, सही बोला सर। अभी समझो, लिखना मत। अब सपोज तुम्हारी इनकम 5 लाख है, तो मोदी जी बोलेंगे आने दो इसको, आने दो, 2.5 लाख की इनकम पे नो टैक्स, और नेक्स्ट 2.5 लाख पे टैक्स होता है 5%, बोले तो 12,500। और बाबू बोलो तुम्हारा टोटल टैक्स कितना है? तो बोला सर मेरा टोटल टैक्स तो 12,500 है। तो मोदी जी बोलते हैं इसको रिबेट दे दो भाई, रिबेट 12,500 का। क्यों दे दे रिबेट? क्योंकि भैया ये भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है और इसकी इनकम भी 5 लाख तक है, तो रिबेट दे दो इसको। तो भैया टैक्स हो गया जीरो, सेस लगेगा जीरो पे 4% जीरो, और फाइनली टैक्स लायबिलिटी होगी लड्डू। यानी जिनकी इनकम 5 लाख तक है उनसे कोई टैक्स नहीं लिया गया। अब एक मिस्टर सी आया, वो भी रेसिडेंट इन इंडिया है, उसकी इनकम है 6 लाख। वो बोला सर मेरी भी टैक्स लायबिलिटी बताइए मोदी जी। बोले भैया तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी होगा 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5%, बोले तो 12,500, और 1 लाख पे भैया तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा 20,000, तुम्हारा टैक्स हो गया 20,000 और, यानी 32,500। बोला सर मेरे को भी रिबेट दीजिए। बोला ना बाबा तेरे को रिबेट नहीं दे पाएगा। अरे क्यों सर, मैं भी तो रेसिडेंट हूं। बोला लेकिन बाबू तेरी इनकम 5 लाख से ज्यादा है।
rebate is available only to those individuals whose income is up to 5 lakh. If your income is more than 5 lakh, you will not get a single penny rebate. एक पैसे का रिबेट नहीं मिलेगा. तो बोला सर मेरा टैक्स कितना होगा? 32,500. हाँ, इसको प्रोसेस 1300 रुपया. 32,500 इसको प्रोसेस 1300 रुपया और इसको टैक्स देना पड़ेगा 33,800. इस कमाल से, इस जबरदस्त प्रोविजन से गरीबों को बेनिफिट मिला लेकिन अमीरों को बेनिफिट नहीं मिला. वो गरीब जिनकी इनकम 5 लाख तक की थी उनसे कोई टैक्स नहीं लिया गया, तो एग्जम्प्टेड सीलिंग उनके लिए तो 5 लाख हो गई. परंतु जिनकी इनकम 10 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, 50 लाख है, उनके लिए इसलिए कोई छूट नहीं है. ये इन्होंने किया जिससे गरीबों को तो टैक्स में छूट मिला लेकिन अमीरों को नहीं मिला, बाय वे ऑफ रिबेट. पहले बताओ क्लियर है क्या? हाँ सायन, एकदम क्लियर? यदि एकदम क्लियर तो अब लिख लो. यही लिखने का तरीका है. रिबेट सेक्शन 87A applicable to resident individual. Resident individual. Condition: total income up to 5 lakh. Rebate up to rupees 12,500. एग्जाम्पल नोट करिए. फाइंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ, आपको निकालना है. एसएससी का नाम मैं बता रहा हूं. मिस्टर ए, रेसिडेंट इन इंडिया. मिस्टर बी, रेसिडेंट इन इंडिया. मिस्टर सी, रेसिडेंट इन इंडिया. मिस्टर डी, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया. इनकम 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख. थोड़ी थोड़ी बढ़ा दूं. 4, 5, 6 का तो एग्जाम्पल मैंने ही दिया था, है ना? तो थोड़ा चेंज कर देते. 4,50,000. 5 लाख तो रखना ही पड़ेगा. 5,20,000. आपको निकालना है टैक्स लायबिलिटी, आपको निकालना है रिबेट, आपको निकालना है सेस, आपको बताना है आंसर. टैक्स लायबिलिटी करो बच्चों, तुम्हारा काम है. यूज कैलकुलेटर, थोड़ा सा फास्ट चलो. हो रहा है क्या? चारों हो गया? नाइस. मैं भी बता देता हूं. ये हो गया 10,000. रिबेट मिल गया 10,000. टैक्स आ गया 0. सेस आ गया 0. आंसर हो गया 0. ये आ गया 12,500. रिबेट मिल गया 12,500. टैक्स हो गया नील, 0. ये भी 0. ये आ गया 2,000 पे 20,000 पे 10% 17,000 यानी 14,500. रिबेट कुछ नहीं मिला. टैक्स आ गया 14,500. 20,000 का 10% ना 20% नहीं 4,000 6,000 16,500 है दादा. मी त्वरे दिच्छी 16,500 16,500 16,500 का 4% 660 17,160.
ये हो गया 4 लाख, 4 लाख पे टैक्स होता है 1.5 लाख का 5,000-7,500। इसको भी रिबेट नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये बंदा नॉन रेसिडेंट है। और 7,500 टैक्स, इसका 4% यानी 600 रुपया, नहीं 300 रुपया टैक्स, और 7,800 विदेशी टैक्स। चेक करो भैया सबका राइट हो गया क्या? अरे चलो भैया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, यहां तक तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्या ये जो रिबेट है, रिबेट इन न्यू रिजीम नहीं मिलेगा? तो आंसर इज यस, रिबेट इन न्यू रिजीम भी मिलेगा, तो वो सिखाइए। लेकिन ये मैं करूंगा कल। ये होगा कल, डिस्कस लेटर। ठीक है, तो आप भी ऐसी कॉपी मिले तो रिबेट इन न्यू रिजीम डिस्कस लेटर, क्योंकि रिबेट के नीचे हिसाब से रिबेट ही आना चाहिए। लेकिन ये वाला रिबेट अभी सिखाने के लिए आपको एक और टॉपिक सीखना पड़ेगा। पहले वो टॉपिक सिखाऊंगा, आज वो टॉपिक सिखाऊंगा, फिर कल ये वाला टॉपिक आपको सिखाऊंगा। कल मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास वेरी पॉजिटिवली आप लोग की मंडे है, तो मंडे आप लोग को ये सिखाऊंगा। अभी आपको क्या सिखाने जा रहा हूं वो ये पूरे इनकम टैक्स का वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है, वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक। नाम है मालूम क्या? नाम है मार्जिनल रिलीफ। लोग डरते हैं लेकिन अपने तो इसको बहुत जल्दी जल्दी करेंगे भाई। मार्जिनल रिलीफ, रेडी? सर हम लोग भी ऐसे लिख के छोड़ दे? यस सर, स्पेस नहीं छोड़े? नहीं नहीं, स्पेस मत छोड़ो। रिबेट इन न्यू रिजीम डिस्कस लेटर, पहले मार्जिनल रिलीफ सीखना पड़ेगा। व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ? आराम से, फिर से कॉपी पेन एकदम मत चलाओ, आराम से देखो, काफी देर देखना पड़ेगा, कम से कम 10 मिनट देखना पड़ेगा, उसके बाद आप पेन हाथ में ले पाओगे। जब आप चीजें समझ रहे हो उस समय आपका फोकस सिर्फ समझने पे होना चाहिए। समझने के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, लेकिन कॉपी पेन एकदम नहीं। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ समझने के लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी का नाम है सुखीराम, सुखीराम और दुखीराम। ये कहानी सुननी पड़ेगी आपको, सुखीराम दुखीराम। सुखीराम कमाता है 50 लाख रुपए और दुखीराम तुम्हें लगता होगा कम कमाता है। ना ना ना, जो ज्यादा कमाते हैं वो दुख में ही रहते हैं। ये कमाता है 51 लाख। इसका नाम क्या है? सुखीराम। इसका नाम क्या है? दुखीराम। ये 50 लाख कमाता है, तो बताओ इसका टैक्स कितना हुआ? ओल्ड रिजीम की बात हो रही है, तो सर 10 लाख पे 1 बार 500 और 40 लाख पे 30% 12 लाख, तो टैक्स कितना हो गया? सर टैक्स हो गया 13,12,500। आराम से देखो, कॉपी नहीं मारना, कैलकुलेटर यूज कर सकते। अब बताओ इसको सरचार्ज कितना देना पड़ेगा? नहीं सर इसकी इनकम तो 50 लाख ही है, तो इसको सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा तो इसका टैक्स कितना हुआ? इसका टैक्स हुआ 13,12,500। ठीक, सेस की बातें अपने बाद में करेंगे, एक बार सेस पूछो। दूसरी तरफ ये दुखी राम है, तो तुम्हारे मन में प्रश्न आना चाहिए कि इसका नाम दुखी क्यों है? अभी आंसर दूंगा, पहले इसका टैक्स बताओ। तो सर इसका भी टैक्स वैसे ही आएगा, 10 लाख पे 1 बार 500 और इस बार इसका होगा 41 लाख पे 30%। तो 41 लाख पे 30% कितना होता है? 12,30,000। तो इसका भी टैक्स मोटा मोटी उतना ही हुआ, कितना? 13,42,500। लेकिन सिंस इसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो उसके ऊपर एक और टैक्स लग जाएगा जिसका नाम है सरचार्ज, 134,250, 10%।
लग गया ना सरचार्ज। तो अब इसका टैक्स कितना हो गया, 13,42,500 इंटू 10%। भैया ये आ गया 14,76,750 से। इसकी बातें बाद में करेंगे। यहां तक कोई डाउट है क्या? तो दुखी राम दुखी क्यों है? दुखी राम दुखी इसलिए है कि वो बोल रहा है कि सरकार, मैं इससे ज्यादा कमाता हूं 1 लाख, और मैं इससे टैक्स इतना ज्यादा देता हूं। एक बार चेक करिए आप, 14,76,500 माइनस 13,12,500, और मैं टैक्स इससे देता हूं ज्यादा 1,64,000। आई एम अर्निंग ओनली 1 लाख हायर, बट आई एम पेइंग टैक्स ऑफ 1,64,000 हायर। सो अल्टीमेटली मैं सुखी से ज्यादा कमा के भी 64,000 से गरीब हूं। आई एम अर्निंग मोर देन सुखी, स्टिल आई एम हैविंग डिस्पोजेबल इनकम लेस देन सुखी बाई 64,000। वो बोल रहे नहीं चाहिए सर मुझे ये 1 लाख रुपया। एक काम करिए, आप ये पूरा 1 लाख ले लीजिए, मुझे भी सुखी बना दीजिए, मेरी भी 51 लाख की इनकम को 50 लाख की ट्रीट करिए। अरे नहीं कमाना सर 1 लाख ज्यादा, 1 लाख ज्यादा कमाने से भी 1,64,000 का टैक्स ज्यादा देना है, 1,64,000 का टैक्स ज्यादा देना है, ऐसा 1 लाख किसको चाहिए? वो बोला नहीं चाहिए मुझे 1 लाख, रख लो आप अपना 1 लाख पूरा रख लो, मुझे भी सुखी बना दो। बताओ दुखी राम सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। और उसको रिलीफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ऐसा तो ही नहीं सकता ना, कैनन ऑफ टैक्सेशन का फंडा है, एडम स्मिथ ने बहुत पहले लिख दिया था, द टैक्स कैन नॉट बी मोर देन इनकम, बट हियर द टैक्स इज मोर देन इनकम। तो कंसिडरिंग द प्रॉब्लम दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। व्हाट दे सेड, marginal relief shall be change in tax minus change in income। यानी ऊपर वाले फॉर्मूले के अनुसार, ऊपर वाले डेटा के अनुसार, चेंज इन टैक्स वाज 1,64,000 एंड चेंज इन इनकम वाज 1 लाख, सो यू विल गेट अ मार्जिनल रिलीफ ऑफ 64,000। लेकिन इसको फॉर्मूले में थोड़ा और तब्दील होने दो। चेंज इन टैक्स मतलब टैक्स लायबिलिटी बिफोर सेस, इसलिए पहले मैं सेस लगा नहीं रहा था, मतलब सेस की बातें बाद में करेंगे, माइनस टैक्स लायबिलिटी ऑन 50 लाख बिफोर सेस, माइनस चेंज इन इनकम, आपकी टोटल इनकम इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। अब इस फॉर्मूले में बैठा है तो टैक्स लायबिलिटी दुखी की है 14,76,750 और टैक्स लायबिलिटी ऑन 50 लाख है 13,12,500। टोटल इनकम है 51 लाख, जो कि 50 लाख से 1 लाख ज्यादा है। सो योर डिफरेंस इन टैक्स इज 164, योर डिफरेंस इन इनकम इज 1 lakh. So Mr. Dukhi, you are eligible for a rebate of a relief of 64,000. लेकिन अभी अपने फॉर्मूले जब कॉपी करेंगे ना तो बस इतना ही कॉपी करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। देखो यहां तक क्लियर हुआ क्या? हाँ, मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं, तब तुम्हें ये चीज भीतर जाएगी। हड़बड़ी मत मचाओ, बहुत पढ़ाने का बहुत एक्सपीरियंस है मुझे मालूम है कौन सा बच्चा कहाँ पे अटकता है, तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि कब तुम्हें कॉपी में लिखना चाहिए। तुम्हें लगता है समझ में आ गया लिख लेते हैं, लेकिन ना रे बाबा ना, वेट कर, 5 मिनट और वेट कर, एक सम और दे, फिर लिखना कॉपी में, क्रिस्टल क्लियर आएगा। कैलकुलेटर यूज करना, कैलकुलेटर यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? इलस्ट्रेशन लिखना मत, सम भी मत लिखना। मिस्टर ए हैज इनकम ऑफ 52 lakh. Find its tax liability. ओ ऐसे सम आएगा? हाँ ऐसे सम आएगा।
आराम से कर, आंसर शुरू कर अपना। ये वर्किंग के लिए छोड़ दे। अच्छा छोड़, वर्किंग क्यों, साइड में कर लेंगे, आजा। तो 52 लाख पे टैक्स निकालना शुरू कर। ओल्ड रिजिम, हाँ, टैक्स ऑन 10 लाख 8/12/500, टैक्स ऑन 52 लाख, नहीं 42 लाख 12,60,000, टोटल टैक्स 13,72,500। सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? यस लगेगा ना, क्योंकि इनकम तो 50 लाख से ज्यादा है। तो टैक्स विल बी 137,250 सरचार्ज लगाते 13,72,500 में 10% सरचार्ज, ये आ गया 15,09,750। नाउ ही विल क्लेम अ मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ कब आता है? सेस लगाने के पहले आता है। तो मार्जिन रिलीफ कितना होगा? यहां पे आप वर्किंग नोट नंबर 1 करके छोड़ दो और नीचे 4 लाइन जाके कैलकुलेशन करिए मार्जिनल रिलीफ का। कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ, फॉर्मूला बताइए, आपको तो ध्यान ही होगा। चेंज इन टैक्स माइनस चेंज इन इनकम। चेंज इन टैक्स मतलब टैक्स लायबिलिटी माइनस टैक्स लायबिलिटी ऑन 50 लाख। हर चीज लिखी नहीं जाती, अपने दिमाग में रहना चाहिए इट इज बिफोर सेस, क्योंकि सेस तो अभी तक लगा ही नहीं है। टोटल इनकम माइनस 50 लाख, तो टैक्स लायबिलिटी कितना आया? 15,09,750। 50 लाख पे टैक्स इतना आएगा, याद ही है तुम्हें, 13,12,500। नहीं तो बोलो तो निकाल के दिखाऊं। 50 लाख पे टैक्स इतना होगा, 10 लाख पे 1/12,500, 40 लाख पे 12%, सॉरी 30%, 40 लाख का 30% 12 लाख, 12 लाख को 1/12,500 कितना आया? 13,12,500 आया। तो यहां पे टोटल इनकम कितनी? 52 लाख माइनस 50 लाख। अरे भैया बताओ कितना आया? सर ये आया 15,09,750 माइनस 13,12,500। सर ये आया 1,97,250 माइनस 2 लाख। तो यहां पे अपने ध्यान दिया मार्जिनल रिलीफ तो नेगेटिव आ गया। तो टू बी नोटेड, मार्जिनल रिलीफ कैन नॉट बी नेगेटिव। यानी इस बंदे को कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। यानी आपको एक बात समझ में आया कि मार्जिनल रिलीफ तभी मिलती है जब इनकम 50 लाख से थोड़ी सी ज्यादा हो। इनकम 52 लाख हो गई तो मार्जिनल रिलीफ एकदम थोड़े से अमाउंट के कारण निगेटिव हो गई। तो यदि आपकी इनकम 50 लाख हो, सॉरी 50 लाख 10,000 हो, 50 लाख 50,000 हो, 51 लाख हो, 51 लाख 50,000 हो, 51 लाख 80,000 हो, तो यू कैन थिंक अबाउट एमआर। यदि आपकी इनकम 60 लाख है, 70 लाख है, 90 लाख है, यू डोंट बॉदर अबाउट एमआर। एमआर आया ही इसलिए क्योंकि सरचार्ज के कारण आपकी टैक्स अचानक 10% जंप कर जाती है। तो एक छोटी सी रेंज में ऐसा होता है कि इनकम जितनी नहीं बढ़ी उससे बेसी टैक्स बढ़ जाता है। तो बस उस रेंज में जब आपकी इनकम फॉल करती है तब मार्जिनल रिलीफ, उस रेंज में जब इनकम फॉल करती है तब आपको मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना पड़ता है। और यदि आपकी इनकम उस रेंज से ज्यादा है तो आपको एमआर नहीं कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन रेंज याद करने की जगह हम लोग ये बोलते हैं कि जब एमआर इज नेगेटिव तो एमआर विल बी 0। और मोटा मोटी दिमाग में बैठाते रहिए कि 50 से 52 इज द रेंज। बात दिमाग में क्लियर? ओके। 15,09,750 प्लस कितना? 4%। 15,09,750 इंटू 4%। अब आपका सेस लगेगा 60,390 और अब आपका टैक्स आएगा 15,70,140।
दिस इज द आंसर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया कि मार्जिनल रिलीफ तभी लगानी है जब इनकम 50 से 52 के बीच में हो। यदि आपकी इनकम 53 है, 52,10,000 है, 52 लाख है, तो आपको एमआर कैलकुलेट करना ही नहीं है, सीधा लिख देंगे एमआर इज 0। गॉट इट। एक एग्जांपल और करो तब आगे बढ़ना। सर हमें कॉपी में लिखने दो। ना 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 ना, ऐसे नहीं करते। डोंट बी इम्पेशेंट। पहले सम से थ्योरी दिमाग में बन रही है, पहले वो थ्योरी दिमाग में बनाते जाओ। उसके बाद एक सम जिससे सब कुछ एकदम क्लियर हो गया, उसके बाद आप नोट करना। कॉपी में लिखना इज द इंश्योरेंस। जब मेरा सब हो जाएगा तब हम इंश्योरेंस कर लेगा कि हाँ मेरे को सब याद ही है, फिर भी कॉपी में लिख लेता हूँ। यू नो मेरे पास बहुत पैसे हैं लेकिन फिर भी डिटेल इंश्योरेंस करवा रखी है, तो वैसे ही मुझे सब याद है लेकिन फिर भी एक तो कॉपी में लिख रखा है। तो पहले सब याद होना चाहिए, दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए, देन ओनली यू विल गो फॉर द राइटिंग जॉब। मिस्टर ए हैज इनकम ऑफ, थोड़ा तेज करता हूं, हाँ, 51,50,000। फाइंड टैक्स लायबिलिटी। ऑब्वियसली ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम तो अभी तक सिखाया नहीं ना एमआर का। तो चलो आपकी इनकम कितनी है ये बताइए, थोड़ी सी स्पीड तेज। इनकम है कितनी? 51,50,000। तो टैक्स ऑन 10 लाख, थोड़ी थोड़ी मदद चाहिए भैया। 1/500। टैक्स ऑन 41.5, बता दो कितना? 12,45,000। अरे दोनों जोड़ के बता दो कितना? 13,57,500। सरचार्ज लगेगा क्या? हाँ लगेगा ना सर, 50 लाख से ज्यादा इनकम है। 135750। कितना आया भैया बता दो 14,93,000। अभी सेस लगेगा कि एमआर? नहीं सर, पहले एमआर आएगा। एमआर के लिए आपको वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 तो हमें ध्यान ही है एमआर क्या होता है। एमआर होता है कि ये टैक्स इतना 14,93,250 माइनस 13,12,500। हाँ बोलो। टैक्स लायबिलिटी ऑन इनकम माइनस टैक्स लायबिलिटी ऑन 50 लाख माइनस टोटल इनकम माइनस 50 लाख। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 1,80,750 और ये हो गया 1,50,000। तो सर इसको एमआर बनता है 30,750। यहां पे हमने इसको क्या किया? 30,750 का एमआर दे दिया। ये आ गया आपका आंसर 14,62,500, 14,62,500। अब लगा दो सेस 4%, 58,500। तो कोई भी टॉपिक पहली बार सीखते हैं ना तो लगता है यार कितना टफ है, कितना लेंथी है, लेकिन जब दोबारा करते हैं ना तो लगता है यार इजी है, और दोबारा करते हैं तब तो लगता है पॉकेट में है यार। इट्स इजी, वेरी इजी। और लोग इसको बोलते हैं भाई ये बहुत टफ है, हमारा तो बहुत टफ है, मार्जिनल रिलीफ तो बहुत टफ है। क्या टफ है भाई? इजी लगा? और कॉपी में नोट करते हैं, कॉपी में नोट करते हैं, एक होमवर्क सम लेते हैं। मार्जिनल रिलीफ applicable if income is little more than surcharge slab. For example, 51 lakh, 50 lakh to 51.8 या 51.9, इतना कौन याद करे? 50 लाख टू 51.8।
what will be the MR? MR will be tax liability before cess S&E. MR will be change in tax minus change in income. यानी टैक्स लायबिलिटी बिफोर सेस माइनस टैक्स लायबिलिटी बिफोर सेस ऑन 50 लाख माइनस टोटल इनकम minus 50 lakh. Note, cess shall be levied after MR. तो इतनी सी नोटिंग है, इतनी सी नोटिंग करने के लिए क्या तुम हड़बड़ा रहे थे, है ना? इंपॉर्टेंट हमने ये सब सीख लिया. कॉपीड. मार्जिनल रिलीफ. इलस्ट्रेशन, ये आपका होमवर्क है. फाइंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए. Having income of 51,70,000. आंसर बता देता हूं, आप अपना झट पे निकालना. हाँ, 51,70,000. आपका आंसर है 51,41,800. घर पे ट्राई करना. आज की क्लास यहीं पे ओवर करनी पड़ेगी, यहीं पे. चलो, क्लास सही था, सब क्लियर. चलो ठीक है, बाय.